So in last lecture we have discussed the wave equation. These are the prerequisites that we need while solving the problems on wave equation, especially this part, okay, the Fourier sine series and its coefficient, Fourier coefficient. So remember this formula: summation n runs from 1 to infinity bn sin n pi x by L is equal to f of x. This is called as Fourier sine series and it's bn actually calculated by this formula 2 by L 0 to L f of x. करना क्या है, बस f of x को यहाँ पे रख दो and take the integration from 0 to L multiplied by 2 by L. Sin x 0 and is x is equal to n pi. These are the basic result in trigonometry. So directly we come to this wave equation. Everything is given in the example. That whole experiment is already it is mentioned in the example. Okay, so our target is what we have to calculate here. We have to find the vibration in the elastic string which is fixed at the ends, okay, whose length is say L, okay, and that vibration is actually denoted by u of xt, okay. So it is calculated by this u of xt. This is the vibration, and it satisfies the equation delta square u by delta t square is equal to c square delta square u by delta x square, where c is the constant. And okay, and the general solution or the solution of this equation is already there, okay. U of xt is equal to this c1 cos mx plus c2 sin mx, c3 cos cmt plus c4 sin cmt. These are the equations, correct? But actually we cannot find this solution u of xt without these conditions, okay. तो अगर आपको ये solution proper calculate करना है, solution calculate करना मतलब we want the value of c1, the exact value of c2, the exact value of c3, the exact value of c4. यहाँ पे एक और unknown आ रहा है which is m, तो m भी आपको calculate करना होगा because m is not there in your given equation. यहाँ पे c था तो c आपको पता है क्या आने वाला है, but we don't know the m. तो ये सारे unknowns अगर आप calculate करते हो then we can say that is the particular solution or the exact solution of the given differential equation. So to find that solution we need this initial condition. First condition is when x is equal to 0, u is equal to 0. When x is equal to L, u equal to 0. The derivative of u at t is equal to 0 at t equal to 0, and u of x 0 is some f of x, okay. So these are the conditions, and by using each and every condition we can calculate this c1 c2 and all these values. तो ये steps में quickly explain कर रहा हूँ. पहले आपको in first step just write down the general solution of that wave equation, which is u of xt is equal to c1 cos mx plus c2 sin mx into c3 cos cmt plus c4 sin cmt. Then in next step, using the first condition, okay, using this first condition we have to calculate c1, okay. The calculation is already there, I don't want to go in detail, okay. ये last lecture में मैंने explain किया, also I have shared that recording also. Simple calculation है. Next what, using condition 3, okay, यहाँ पे बस correction है, I will do that, okay. Using condition 3 we have to calculate c4, है ना. तो सारे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आने तो c1 आपका 0 आने वाला है कंडीशन 1 से, c4 आपका 0 आने वाला है कंडीशन 3 से. देन कम टू नेक्स्ट केस वेयर वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन 2, एंड कंडीशन 2 से आपको m मिलेगा, वो भी यही आने वाला है n pi by L, ठीक है. Then after putting all these values, by putting c1 equal to 0, by putting c4 equal to 0, by putting m is equal to n pi by L, after putting all these values actually you will get your u of xt which will look like this. But जैसे आप n vary करते हो, where n takes values from 1 to infinity, okay. But as you vary your n, you will get that you will get the corresponding solution. means हर एक n के लिए आपको एक एक solution मिलता है. ऐसे यहाँ पे infinitely many solution है because n takes value from 1 to infinity. So but I have to calculate all possible solution, or I can say general solution, okay. So for that I need to combine all these solutions. हर एक n के लिए जितने जितने solution मुझे मिल रहे हैं सारे solution के आप addition करो, that gives you the general solution, okay. ये आपको शायद पता होगा कि अगर f1 solution है, f2 भी solution है, उन दोनों के अगर आप addition करते हो that gives you the general solution, ठीक है. वही मैंने यहाँ पे किया. So if I add this, okay, just for the notation purpose, ये constant ही है तो आप कैसे भी replace करते हो, replace this arbitrary constant by bn, है ना, and n takes value from 1 to infinity, remaining things are as it is. So this is your actually final solution, ये आपका final solution, okay. Almost सारी चीजें आपके पास है. अभी unknown यहाँ पे क्या है, so only unknown is here bn. तो ऐसे स्टेज पे आपको आना है जहाँ पे लास्ट में बस bn ही आपका अननोन रहेगा. एंड टू कैलकुलेट दैट bn वी हैव टू अप्लाई दैट लास्ट कंडीशन नंबर 4, ओके. उसके लिए बस आपको ये देखना है कि f of x आपको क्या गिवन है, ओके. f of x
आने के बाद जस्ट राइट डाउन bn इज इक्वल टू 2/l। आप पे डायरेक्टली आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। इफ यू डोंट वांट टू गो बाय दिस वे डायरेक्टली रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर bn which is 2/l 0 to l f of x sin n by x by l into dx। solve this integral, that is the difficult task, you need to work on this। ठीक है, जिनको इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है उनको तो अच्छे से वर्क करना होगा। और जैसे bn कैलकुलेट होता है एट द एंड जो आपका रिजल्ट था उसमें बस bn की वैल्यू पुट करो। बुक में इसके आगे भी उन्होंने सिंप्लीफाई किया बट नो नीड टू डू दैट सिंप्लीफिकेशन, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ bn इन दैट इक्वेशन मींस ये जो लास्ट में आ रहा था ये इसमें पुट कर दो एंड वहीं पे आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर आई वांट टू टेक सम एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। ओके, अगर कुछ भी क्वेरी आते हैं, अगर कोई भी पार्ट नहीं समझ में आ रहा है कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, इफ डाबा स्क्वायर वाई, बस नोटेशन चेंज हो रहा है, वहाँ पे u के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे y के लिए आ रहा है, इतना ही चेंज है। ठीक है, सो डाबा स्क्वायर y बाय डाबा टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डाबा स्क्वायर y बाय डाबा एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों जगह पे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, देयरफॉर इट इज एक्चुअली व्हाट second order partial differential equation। okay, so remember now onwards I will not add any student okay after that time। okay, network issue होता है, जो भी होता है, now you have to handle that part। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट को कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, अगर जेन्युइन है क्योंकि क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है हर टाइम पे, ट्राई टू क्योंकि आगे आप एक बार टाइम में कनेक्ट हो जाते हो ना तो बाद में मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो स्पेशली जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो रिप्रेजेंट दी दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ यल। मैंने आपको पहले बोला था कि सारी चीज़ें आपको मेंशन रहेगी। ओके, सो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है यल, फिक्स एट द एंड्स, फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सी इन जनरल एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है एज फार एज डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंसर्न। इसलिए आप देखो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऐसे कोई मेथड्स नहीं है जैसे आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेथड्स थे जो आपने M2 में लर्न किए थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, लाइक दैट। ठीक है, होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस है, दिस आर द मेथड्स ओनली फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बट as far as partial differential equations are concerned, there is any fixed method to find the solution of any given partial differential equation। okay, ये सबसे difficult task होता है, इसलिए जो भी चीज़ें आप लर्न कर रहे हो वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वैलिड है। ठीक है, so we have to solve or we have to find the solution of this differential equation under the condition। तो ये कंपलसरी चाहिए, ये 4 कंडीशन अगर आपके पास है तो ही सोल्यूशन पॉसिबल होता है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0, सिमिलर होंगे जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए थे वही कंडीशन रहेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू l है ना, व्हेन x इज इक्वल टू l, यहाँ पे u नहीं है, यहाँ पे बस y है, तो मैं सारी चीज़ें y में रखता हूँ। देन y इज इक्वल टू 0, करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, y t is equal to 0 when t equal to 0, and next is what, that y at x0 is equal to f of x। तो ये जो भी वैल्यू रहती है आपकी, that value is your f of x, this is your f of x। ठीक है, अभी ये जो so in first step just write down the general solution, the most general solution, c1 cos mx, c2 sin mx, c3 cos cmt, c4 sin cmt। तो ये आपको याद रखना होगा। ओके, ये आपको बस याद रखना होगा। आफ्टर दैट जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है ना, यूजिंग दी कंडीशन 1। आप चाहो तो ये लैंग्वेज नहीं भी यूज करते हो तो भी चलेगा। सो यूजिंग कंडीशन 1 है ना, पुट x इज इक्वल टू 0, इफ आई पुट x इक्वल टू 0 यू विल गेट c1 इक्वल टू 0। यूजिंग कंडीशन 3 यू हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t एंड देन यू हैव टू पुट t इक्वल टू 0, इफ आई डू दैट यू विल गेट c4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको प्रीवियस से ही कॉपी करना है। फिर उसके बाद आपको कंडीशन 3 का यूज करना है ना। कंडीशन 3 का जब आप यूज करते हो ओके, x इज इक्वल टू यल पुट करके, ओके, हाँ ये सॉरी कंडीशन टू का अगर आप यूज करते हो y l t इक्वल टू 0, फ्रॉम दैट यू विल गेट वैल्यू ऑफ m। ठीक है ना, तो अभी आपके पास m की वैल्यू है, c4 की वैल्यू है, c1 की वैल्यू है। नाउ यू कैन राइट दैट मोस्ट जनरल फॉर्म। ओके, इनके नोटेशन अलग अलग है, इट डजंट मैटर। ठीक है, बट आपका यहाँ पे कुछ तो c2 c3 आ रहा था। ओके, तो आप वही रख दो इसके जगह पे। एंड नाउ
वी वैरी अवर n विल गेट द करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन, मतलब हर एक n के लिए आपको एक एक सोल्यूशन मिलता है, बट आपको सारे सोल्यूशन ऐड करने, दैट्स वाई दिस कैन बी रिटर्न एज द समेशन n रन्स फ्रॉम 1 to infinity bn sin n pi x by l cos n pi ct by l। आप देखोगे ना ये प्रीवियस में जो आपको एक्सप्लेन किया था वही आ रहा है, सेम एज इट इज, ठीक है। इसके आगे चेंज होगा आफ्टर दिस टू कैलकुलेट bn अवर फॉर्मूला इज व्हाट 2 by l, करेक्ट, 0 to l f of x, है ना, ये टर्म ने कैंसिल करना है, ये टर्म कैंसिल हो जाता है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि आपको लास्ट कंडीशन यूज करनी है जिसमें t इक्वल टू 0 आता है, तो आपको ये लेना है when t इक्वल टू 0, तो लेफ्ट साइड में आएगा y x 0, बट y x 0 की वैल्यू क्या है k इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में क्या होगा bn, यहाँ पे t है ही नहीं, यहाँ पे t है तो cos 0 क्या होता है 1, सो यू विल गेट दिस। एंड नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन हाउ यू राइट bn को कैसे लिखना है, बस ये f of x आपको यहाँ पे रख देना है, सो 0 to l f of x साइन, ये जनरल फॉर्मूला है n pi x by l, बट आपको करना क्या है, ओके, टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आप ये ट्रिक याद रखो, ये जो भी f of x आता है ये बस यहाँ पे रख देना है, ठीक है। सो द फाइनल फॉर्मूला ऑफ bn इज 2 by l 0 to l, क्या था वो फंक्शन k इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन n pi x by l इंटू डी एक्स। अभी बस आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं वो दिखाता हूँ नीचे, ओके, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। नाउ जो सॉल्व दिस इंटीग्रल, ठीक है, तो इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आपको जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स यूज करना है, ठीक है, विच आई वांट टू एक्सप्लेन हियर। व्हाट इज जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स, आई विल ऐड दैट पार्ट इन प्रीरिक्विजिट्स, ओके, फिर से ऐड कर लेता हूँ मैं। व्हाट इज द जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स, इफ इंटीग्रेशन ऑफ u इनटू v, ओके, dx, जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स क्या होता है, a to b, okay, is what, write down first function as it is, integration of second minus derivative of first integration of second plus derivative of first integration of second, like that, continue करो, ठीक है, and limits from a to b। सिंपली क्या है, जो बस आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उसके बाद ये जो फर्स्ट टर्म इसका डेरिवेटिव कंटिन्यू करना है, इसका आपको बस डेरिवेटिव कंटिन्यू करना है, ठीक है, यू डैश, यू का डेरिवेटिव क्या आता है, यू डैश, ओके, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा यू डबल डैश, और जो सेकंड टर्म है उसका इंटीग्रेशन कंटिन्यू करना है, लाइक दैट, ठीक है। हाँ, अभी आपका क्वेश्चन होगा हाउ यू आइडेंटिफाई विच फंक्शन यू हैव टू कंसिडर एज u एंड विच फंक्शन यू हैव टू कंसिडर एज v, है ना। तो इसमें जनरली u फंक्शन आपको कौन सा फंक्शन लेना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि u के डेरिवेटिव जा रहे हैं, तो जनरली आपको u फंक्शन कौन सा लेना है जिसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद 0 होने वाला है, अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज वैनिशेस आफ्टर सम स्टेप्स, है ना, जिसका डेरिवेटिव आपको पता है कि आगे जाकर 0 होगा, दैट फंक्शन यू हैव टू कंसीडर एज u, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, आपको पता है साइन का डेरिवेटिव कभी 0 नहीं होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इट मींस द अदर फंक्शन वी हैव टू ट्रीट एज u, सो दिस बिकम योर u एंड दिस बिकम योर v, ठीक है। ये अगर आपने परफेक्ट आइडेंटिफाई किया तो आगे 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 सारी चीजें आपके लिए ईजी है, ठीक है। कैसे, आई थिंक ये k कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर ही लिया है, ठीक है। हाँ, एंड नाउ देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट u को वैसे ही रख दो, u को वैसे ही रख दो, जो सेकंड टर्म है उसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस, है ना, कॉस ऑफ दिस होल टर्म ब्रैकेट में एज इट इज, बट डिवाइडेड बाय साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस एज इट इज n पाई x बाय l, बट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म, तो डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म क्या है, n पाई बाय l, ये ऊपर जाएगा तो सॉरी, हाँ करेक्ट ही किया है, ये लिखिए एडजस्टमेंट कहाँ पे किया उन्होंने, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओके, फर्स्ट का इंटीग्रेशन आई थिंक उन्होंने यल नहीं, ये तो बाहर का ही यल है, एम आई मेकिंग सम मिस्टेक, व्हाट अबाउट एल, तो रॉन्ग देख रहा हूँ क्या मैं, ओके सॉरी वो L है, मैं 1 देख रहा हूँ, करेक्ट, इट इज देयर, हाँ इट इज देयर, ये यल ही है, ओके हाँ। सो ये जब ऊपर जाता है सो इट एक्चुअली L अपॉन
एन पाई, अभी करेक्ट है। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, इसके बस आप अगर फर्स्ट टर्म आप अच्छे से लिखते हो ना, फर्स्ट टर्म मैंने कैसे लिखा है फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये भी इंटीग्रेशन इतने कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट टर्म मैंने कैसे लिखा है, ये ऊपर का रूल यूज करना है। ऊपर का रूल क्या है, यू को वैसे ही रख दो, यू को वैसे ही रख दो, वी का इंटीग्रेशन लेना है। अभी इसके आगे क्या करना है, अभी आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, इसके आगे क्या करना है, जस्ट गिव द अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस साइन। तो अभी प्लस था तो ये माइनस साइन आ जाएगा, करेक्ट। जो फर्स्ट टर्म है उसका आपको डेरिवेटिव कंटिन्यू करना है, जो सेकंड टर्म है उसका आपको इंटीग्रेशन कंटिन्यू करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का एल माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फिर से कॉस का इंटीग्रेशन साइन डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एन पाई बाय एल, ये ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ओके, पावर हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर से कंटिन्यू करो जब तक ये जीरो नहीं होता तब तक। नेक्स्ट टर्म में इस सेम पार्ट का डेरिवेटिव जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा अभी -2, और इसका इंटीग्रेशन कॉस का साइन का माइनस कॉस आने वाला है, वो माइनस माइनस प्लस होगा, और इसके एक और पावर इंक्रीज होगी, एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव जीरो होने वाला है, तो इसलिए आगे का टर्म मैंने स्किप किया, ठीक है। सो वी आर एट हियर ओनली, एंड नाउ let me erase these things, no need, and now just put upper limit and lower limit. It's okay, so I want to explain that. हाँ, upper and lower limit के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि cos का टर्म एग्जिस्ट करेगा, कैसे आप चेक करो, just put upper limit, if I put upper limit x is equal to L, करेक्ट। आप चेक करो यहाँ पे क्या आने वाला है, L कैंसिल होगा, इन ब्रैकेट आपको मिलेगा साइन n पाई, है ना, अगर आप यहाँ पे रखते हो तो, बट आपको पहले ही पता है कि साइन n पाई इज ऑलवेज जीरो, साइन पाई मल्टीप्लाई कुछ भी आने दो, नेचुरल नंबर है, इंटीजर वैल्यू, पाई मल्टीप्लाई इंटीजर वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, तो इसलिए ये टर्म जीरो होगा अपर लिमिट के लिए, और लोअर लिमिट जीरो ही है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो आता है, ओके। हाँ, एंड नाउ सो ओनली कॉस टर्म इज रिमेनिंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये टर्म क्यों जीरो होने वाला है, अगर आप x इक्वल टू यल पुट करते हो तो यहाँ पे आने वाला यल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ये भी टर्म आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके ना, अपर लोअर लिमिट के लिए वैसे भी नहीं कर रहा है ये, ठीक है, क्योंकि जीरो पुट करते हो तो एक्स की वजह से वो जीरो आ रहा है। सो फॉर अपर एंड लोअर लिमिट दिस टर्म इज जीरो, फॉर अपर एंड लोअर लिमिट दिस टर्म इज जीरो, सो आई डोंट वांट टू कंसिडर दिस। या आप ऐसे डायरेक्ट जंप कर सकते हो, अदरवाइज आप सॉल्व करो प्रॉपर, या आपकी चॉइस है, ओके। आपको ये देख कर समझ में आ रहा है कि ये लोअर एंड अपर लिमिट के लिए जीरो हो रहा है, ये भी लोअर एंड अपर लिमिट के लिए जीरो हो रहा है, तो यू विल गेट ओनली दिस टर्म। नाउ जस्ट पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, यू विल गेट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक रिजल्ट यूज किया, ये सारी चीज मैं ऊपर ऐड करता हूँ, ओके। यहाँ पे उन्होंने एक रिजल्ट यूज किया है कि cos 0 1 होता है, एंड cos व्हेन आई पुट x इक्वल टू n, यू विल गेट cos n पाई, तो cos n पाई की जो वैल्यू है वो -1/n आती है। दो रिजल्ट यहाँ पे बेसिकली मैंने यूज किए, मैं वो प्रीरिक्विजिट में ऐड करता हूँ, cos n पाई इज दिस। आप चाहो तो ऐसे भी रखते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न यू हैव टू रिमेंबर दिस चेंज। तो cos n पाई इज -1/n, और ये जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स, तो इतना कुछ डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है, यू नीड टू सम वर्कआउट ऑन दिस। तो आपको bn मिल गया, bn की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रख दो, यहाँ पे नहीं, इस इक्वेशन में, ओके, इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये 6-7 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, कुछ आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, एज इट इज रख दो, वहीं पे आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर, और इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कुछ डाउट्स है तो बोलो, ठीक है। आप देखो कितने बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, ये लास्ट यूनिट आपके लिए इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, जनरली आप स्टूडेंट्स का इसमें स्कोर होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है लास्ट इंटीग्रेशन के लिए, बट वो भी आप देखो ना कि हार्डली इसमें 5-6 एग्जाम्पल है, जितना इसमें ऐड किया उतना ही प्रिपेयर करना है कोई किसी भी एग्जाम के लिए, तो अगर आप उतने 5-6 इंटीग्रेशन तो आप कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ डिफिकल्ट टॉपिक है, ओके। सो बट नीड सम प्रैक्टिस, ठीक। से a string is stretched and fastened at the 2 points L apart, which distance is L. Motion is started by displacing the string in the form of u equal to a sin pi x by L, correct? From which it is released at a time t equal to 0. Find the displacement u of xt from one end. Use wave equation. तो उन्होंने हिंट भी दी, ठीक है। हाँ, तो क्या क्या गिवन है आपको, we'll go through that. What is given? We have given the wave equation, dabba square u by dabba t square is equal to c square dabba square u by dabba x square, okay. आपको जो इनिशियल कंडीशंस लेने हैं, ओके, ये सारे इनिशियल कंडीशन स्टेटमेंट में गिवन है, ओके। सो एज द एंड पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग आर फिक्स, ओके, फॉर
all time and the initial transfer velocity of any point of the string is 0. Okay, so we have this wave equation. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है. उन्होंने अगर जैसे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि you have to stretch this string, okay, whose length is L, means you can apply these two result. These are the initial conditions. Okay, so you at when x is equal to 0, these are at the boundaries, है ना. यहाँ पे x 0 होता है, यहाँ पे x is equal to L होता है. These are the standard initial conditions, boundary condition. Okay, these are called as boundary condition and these are called as initial condition. ठीक है, so u of 0 t equal to 0, u of lt is equal to 0. Okay, this is for all t. Next is what, ये भी statement उनका था, ओके, सो अगर नहीं दिया है तो आपको कंसिडर करना है, क्योंकि दिस कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर दिस 4 कंडीशन. एंड इनिशियली डा बाई यू बाई डा बाई टी एट टाइम टी इक्वल टू 0 इज 0. सो दे आर द स्टैंडर्ड इनिशियल कंडीशन एंड उन्होंने यू की वैल्यू दी है. ओके, मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस. ओके, मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग इनिशियली, okay, by displacing this u equal to a sin pi x by l. So when t equal to 0, you have to take u equal to this value. Okay, या आप सिंपली मैं आपको इसको और सिंपल कर देता हूँ. ये सारे कंडीशंस गिवन रहेंगे, अगर नहीं भी गिवन है तो आपको कंसिडर करना ही होगा, बिकॉज ओनली इन दैट केस ओनली वी कैन सॉल्व दैट वेव इक्वेशन. वेव इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तीनों कंडीशन तो कंपलसरी है और चारों कंडीशन. आपको बस क्वेश्चन से ये अच्छे से देखना है कि उन्होंने एफ ऑफ एक्स क्या गिवन दिया, ये बस आप अच्छे से वर्कआउट करो. ठीक है, तो आपको ये लैंग्वेज मुझसे भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, बिकॉज आपने वो सारे सब्जेक्ट आपने लर्न भी किए. ओके, सो हियर जस्ट फोकस ऑन दिस लास्ट पार्ट कि एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है. बाकी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, गिवन क्वेश्चन में गिवन है तो लिखो, क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो भी आपको मेंशन करना है, बिकॉज दीज आर दी स्टैंडर्ड इनिशियल कंडीशन और दी इनिशियल कंडीशन. जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट में बोलते हो, है ना, इफ एट टाइम टी इक्वल टू 0 देयर इज नो चार्ज इन द सर्किट. ओके, या आप स्टैंडर्ड इनिशियल कंडीशन लेके आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, है ना. सो इन ए सिमिलर वे यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस कंडीशन एंड देन सेम. अभी ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, C10 C40 m इक्वल टू दिस आ गया आप यहाँ तक. ठीक है, u of x t इक्वल टू समेशन n runs from 1 to infinity bn sin n pi x by l cos n pi c t by l, where bn is equal to what is our formula? Bn is equal to what? 2 by l 0 to l f of x, है ना, sin n pi x by l like that into dx. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है. ठीक है, बुक में उन्होंने, मैं आपको बोलता हूँ दोनों मेथड आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, आप देखो कि आपको जिस मेथड से जाना आप वो जा सकते हो. ठीक है, हाँ, ये भी n का फॉर्मूला है. यहाँ पे उन्होंने कैसे किया आपको मैं बोलता हूँ. ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, ये तो मेथड में एक्सप्लेन करता है, बुक की मेथड एक्सप्लेन करता हूँ. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, अरे यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में साइन आ रहा है, यहाँ पे भी राइट साइड में साइन आ रहा है, मीन्स व्हाट, आई कैन कंपेयर दिस टू वैल्यूज. ऐसा तभी होता है अगर दोनों साइड पे सेम वैल्यूज आते हैं. तो आप देखो कि आपको कौन से मेथड से करना है. ओके, तो लेफ्ट साइड में भी साइन है, राइट साइड में भी साइन है, तो क्या करो, आप ये समेशन सिंप्लीफाई करो, फिर देखो कि bn की वैल्यूज क्या आ रही है. सो समेशन सिंप्लीफाई करना मतलब n इक्वल टू 1 पुट करो, सारे वैल्यूज के लिए लिख दो. इफ आई पुट n इक्वल टू 1 यू विल गेट b1 साइन पाई x बाय l प्लस b2 साइन 2 pi x by l plus b3 sin 3 pi x by l and so on. Okay, now this is on RHS and this thing is on LHS. If these two values are equal, can you tell me the values of b1 b2 b3 b4 and so on? Can anyone? ये दोनों equal है. So what this implies? These two values are equal. What this implies? Yes, b1 क्या लेना होगा? What is b1 b2 b3 and so on? b1 क्या लेना होगा? ये दोनों इक्वल है, यही आपने लिखा है ना, ये दोनों इक्वल है. तो आप देखो sin pi x by l, यहाँ पे भी sin pi x by l, तो b1 क्या लेना होगा? a. What is b2? 0.
0, क्योंकि 2 पाई का टर्म है ही नहीं, B3 0, इसके आगे सारे नंबर 0 आ जाएंगे, हो गया। तो Bn में बस B1 क्या हो रहा है आपका, A आ रहा है, और सिंपली यू कैन कंसिडर Bn, सिंपली यू कैन कंसिडर दिस इज इक्वल टू, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में, आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना होगा, n इक्वल टू, आप चाहो तो Bn ऐसे डिफाइन करो डायरेक्टली, यहाँ पे इसके नीचे क्या कर सकते हो, वेयर Bn इज इक्वल टू 1, वेयर Bn इज इक्वल टू 1 व्हेन n इज इक्वल टू 1 एंड इट इज 0 अदरवाइज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हो गया। इतना भी लिखा तो भी समझ में आ जाता है कि यही आंसर है, बस Bn ये लेना है, ठीक है। या अगर आपको इस मेथड से नहीं जाना, ये सबसे इजी वे होता है, ओके, इस मेथड से नहीं जाना तो आप सॉल्व करो, 2/l 0 to l f of x sin n pi x by l, f of x क्या था, लेफ्ट साइड में जो भी होता है वो f of x होता है, तो a sin pi x by l इंटू साइन n pi x by l, sin a sin b का फॉर्मूला है, sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a cos ऑफ, दिस इज sin a sin b, तो फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, ठीक है, वही मैंने किया है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। फिर कॉन्स्टेंट्स को कैंसिल किया, दिस टू कैंसिल विद दिस टू, a बाई l रहेगा, यहाँ पे साइन कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म जो भी नीचे आ रहा है, पाई बाई एल माइनस एन पाई बाई एल, कॉस का इंटीग्रेशन साइन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म, इसके आगे पुट अपर लिमिट यू विल गेट दिस, पुट लोअर लिमिट वो 0 हो जाएगा, साइन 0 0, यहाँ तक आपको मिल गया, ठीक है। चाहो तो और सिंप्लीफाई करो, आई टेक पाई कॉमन, यल को मैंने एडजस्ट किया ऊपर, और ऊपर एडजस्ट करते तो इस यल से वो कैंसिल हो जाएगा, ये यल, ठीक है, यू विल गेट दिस। अभी यहाँ से भी आपको समझ में आता है, जब आप n इक्वल टू 1 पुट करते हो ना, ये 0/0 फॉर्म जाता है, मतलब आपको यल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना होगा, ठीक है। या आप यहीं पे छोड़ देते हो तो भी करेक्ट है, मतलब अगर थ्योरी में आ जाता है, इट इज ओनली फॉर थ्योरी में आ जाता है, आप यहीं पे छोड़ देते हो तो भी करेक्ट है, क्योंकि थ्योरी में ये मैटर नहीं करता कि आपको कहाँ तक सिंप्लीफिकेशन करना है, ओके। सो इसके आगे आप चेक कर सकते हो, इफ आई पुट n इक्वल टू 1, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो मुझे कैसे 0/0 फॉर्म है, बिकॉज साइन 0 होता है और नीचे भी 0 आता है, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल से जाना है। एल हॉस्पिटल रूल के लिए क्या करना होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म, तो वो क्या आएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म, पाई माइनस एन पाई का डेरिवेटिव माइनस पाई एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, पुट n इक्वल टू 1, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, सो दैट आंसर इज दैट आंसर इज 1, तो ये बाहर का a रहेगा, ठीक है, तो ये 1 होगा। ऐसे आप ये सॉल्व करो, ये n इक्वल टू 1 पे ये 0/0 फॉर्म नहीं है, ये साइन 2 पाई आता है विच इज ऑलरेडी 0, ओके, तो आप n इक्वल टू 1 पे अच्छे से चेक करो, ये वैल्यू आती है 1, ये वैल्यू आती है 0, ओके, एंड फाइनल एडिशन होगी आपकी a। कैसे किया मैंने, सिंपल लिमिट का रिजल्ट यूज करके किया, बट आई डोंट वांट टू फोकस मोर ऑन दिस पार्ट, क्योंकि आप यहीं पे छोड़ देते हो तो भी करेक्ट है, या आपको जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया आप ये रिजल्ट लिख लेते हो डायरेक्टली बाय कंपेयरिंग, यू विल गेट दिस, तो भी करेक्ट है। सो इट इज अप टू यू, बट आई थिंक दिस इज मोर इजी अप्रोच। ये मैंने इसलिए नीचे दिया था क्योंकि ऐसा ना हो कि जो मैंने मेथड ऊपर एक्सप्लेन की है, ओके, उस मेथड के हिसाब से आप ये क्वेश्चन आपको आंसर नहीं दे रहा, सो इट इज अप टू यू, करेक्ट। तो जितना आपको इसमें से हो रहा है कैलकुलेशन आप करो, ये इसके अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, समझ में आ रहा है तो यू कैन कंसिडर दिस, ठीक है। सो दिस इज योर सेकंड एग्जांपल, नाउ आई विल टेक ओनली वन एग्जांपल एंड देन रिमेनिंग एग्जांपल्स इज फॉर यू, फॉर योर रेफरेंस। मैंने और 2 एग्जांपल ऐड किए, जस्ट गो थ्रू दैट, जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा आप मुझे बोलो, ठीक है। So now this is the last example which I want to consider today, and that is all about wave equation, okay। 30% टॉपिक हो गया, लास्ट यूनिट आपके लिए इजी है ना। Last question is what? A tightly stretched string with fixed end points x equal to 0 and x equal to L is initially in a position given by y of x 0 equal to this, तो given है आपको f of x, बाकी चीज़ आपको नहीं भी है तो अभी आप कंसिडर करने वाले, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। फिर C10 C40 m इक्वल टू आ गया आपको उसी इक्वेशन पे, आगे bn कैलकुलेट करना है, तो bn का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2/l 0 to l f of x sin n pi x by l into dx, है ना। हाँ, बट यहाँ पे जो bn आ रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ क्या आ रहा है, व्हाट इज योर f of x, यहाँ पे था वो क्या, ये f of x है। सो योर bn इज व्हाट, 2/l 0 to l
एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स, सो विच इज इक्वल टू 2/L 0 to L एफ ऑफ एक्स क्या है, ये जो भी आ रहा है वो वाई नॉट विच इज द कॉन्स्टेंट, यू कैन टेक आउटसाइड, साइन क्यूब पाई एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। ठीक है, आई थिंक उन्होंने डायरेक्ट आंसर दिया है क्या आपको यहाँ पे? तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, ओके, डायरेक्ट आंसर है, सो आई थिंक आई नीड टू सॉल्व दैट, ये थोड़ा टाइम लेगा, साइन क्यूब एंड साइन है, और कोई ट्रिक इसमें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आई विल शेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ओके, आई विल नॉट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। साइन क्यूब ही दिया है ना, क्रिएट लिटिल बिट प्रॉब्लम, ओके, सो आई थिंक आई नीड टू ऐड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, देन विल शेयर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो उन्होंने लेंथ दी है ना वो 2L लेंथ है, तो कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चन में, तो दैट यू नीड टू सी प्रॉपरली। ठीक है, तो आप देखो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे गिवन है, x इज इक्वल टू 2L यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे उनका फंक्शन उन्होंने दिया है y इक्वल टू दिस, तो ये बस इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये उनका फंक्शन है, बाकी चीज़ें एज इट इज कॉपी पेस्ट करते जब आप C10 C40, यार इसमें कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं होगा, ओके, चेंज कहाँ पे होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, y ऑफ x इक्वल टू C3 एंड नाउ ये कंडीशन क्या होगी आपकी, x इज इक्वल टू 2L पुट करना होगा, है ना, आप x इक्वल टू L पुट करते हो तब आपको यहाँ मिलता था, यहाँ पे x इक्वल टू 2L पुट करना होगा, तो यू विल गेट m इज इक्वल टू n पाई बाय 2L, थोड़ा इसके आगे चेंज होगा, है ना, बाकी चीज़ें आपके आ जाएगी, n पाई बाय 2L cos n पाई बाय 2L, जहाँ पे भी आप L लिखते थे ना प्रीवियसली, वहाँ पे उसके जगह पे 2L आने वाला है, इतना चेंज है, ओके, और फिर bn का कैलकुलेशन विच इज 0 to L एफ ऑफ एक्स इंटू 0 to L में जो आपका फंक्शन है वो क्या है, bx बाई L ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ सॉरी, वो जो L इंटरवल है शायद वो हाँ दो पार्ट में डिवाइड है ना, उन्होंने दिया है शायद वो, सो इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, हाँ 0 to L एंड L to 2L। आपका जो कैपिटल L होता है उसमें जो इंटीग्रेशन का फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला है 2/L 0 to L, ये एंड पॉइंट होता है, तो ये आपका जाएगा 0 to 2L तक एक्चुअली। ठीक है, इतना बस याद रखो, सिंपल लॉजिक क्या है, जहाँ पे भी आप L लिखते थे उसके जगह पे आएगा 2L, सो 2/2L 0 to 2L एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स बाय L इंटू डी एक्स, इतना याद रखना है, जहाँ पे L था वहाँ पे 2L कंसिडर करना है। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या है, कैपिटल L की वैल्यू क्या है, 2L है, ओके, तो आप देखो 2/2L 0 to 2L एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स बाय 2L, कुछ भी चेंज नहीं है, फिर ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, ट्राई टू वर्क आउट ऑन दिस, डिफिकल्ट इंटीग्रेशन भी नहीं है, सिंपल है, यहाँ पे यहाँ पे जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स आएगा, यहाँ पे भी जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स आएगा। ठीक है, एंड इतने लेंथी क्वेश्चन अभी आपको आने के चांसेस नहीं है, बट स्टिल जस्ट फॉर रेफरेंस आई हैव कंसिडर दिस एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। bn मिल गया आपको, bn की वैल्यू एज इट इज ऊपर पुट करो, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बट ट्राई टू वर्क फॉर सिंपल एग्जाम्पल्स, ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके रखने, जिनको इंटीग्रेशन आ रहा है दे कैन हैंडल दिस पार्ट। ठीक है, ये जो नीचे का पार्ट है, जिनको नहीं आ रहा है उनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, तो इसलिए आप एटलीस्ट सिंपल फंक्शन के लिए आप वर्कआउट करके रखो, जैसे ये एक फंक्शन है ना, तो इसमें भी इतना कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होगा नीचे। ठीक है, एक ही बार आपको जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स यूज करना है, और ये भी डिफिकल्ट नहीं है, ये शायद हमने अभी ऊपर किया भी था, जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स में इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, देयरफॉर वी कॉल इट एज u, ओके, उधर बिकम v, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे रख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस अपॉन देयर कोएफिशिएंट, फिर इसका डेरिवेटिव कंटिन्यू करो, ओके, इसका इंटीग्रेशन कंटिन्यू करो, ओके, नेक्स्ट स्टेप में फिर इसका डेरिवेटिव -2, फिर इसका इंटीग्रेशन 0 to L में कुछ टर्म्स आपके 0 होने वाले, जैसे ये 0 होगा L के लिए, है ना, ये भी 0 होगा, एंड शायद ये भी 0 होगा L के लिए। ठीक है, सो ये की टर्म रहेगा, इतना है आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, एंड दैट यूज द फाइनल आंसर। तो जितना आपको हो रहा है आप उतना कर ले तो भी कंसिडर हो जाएगा।
ठीक है. सो ओनली आई वांट टू प्रोवाइड आंसर ऑफ ओनली वन क्वेश्चन, अदरवाइज सारी चीज़ें ट्रिवियल है. ठीक है, मुझे बस ये प्रोवाइड करना है आपको, दैट आई विल सॉल्व इन दिस PDF एंड देन विल शेयर विद यू. ये मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ. ठीक है, ओके.